الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، بزرگان دین، طلباء کرام و طالبات و دیگر سامعین کرام، آپ حضرات صبح سے سن رہے ہیں کہ ہمارے یہ معصوم بچے اور بچیاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو اپنے اس دل و دماغ کے اندر محفوظ کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو تلاوت فرمائی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو یہ درس دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. جس طرح والدین اپنے بچے کو پکارتے ہیں، اور اگر وہ اپنے بچے کو نام لے کر پکارتے ہیں تو نام لینے کے اندر وہ شفقت اور محبت پیدا نہیں ہوتی ہے کہ جو ماں باپ کے بیٹا یا ابو یا جو بھی اس کو محبت کے الفاظ سے پکارتے ہیں، اس کے اندر جو شفقت اور محبت اور جو لذت ہوتی ہے وہ بیٹے کے نام لینے کے اوپر نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سے ایمان والا کہہ کر جو ہے یہ پکار رہا ہے: اے ایمان والو، قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو. کس چیز سے؟ آگ سے. وہ آگ کیا چیز ہے اور اس کے اوپر وہ کیسی آگ ہے؟ اس کے لیے کہا وقودھا الناس والحجارہ. یہ دنیا کی آگ نہیں ہے کہ جس کو جلانے کے لیے تم پٹرول یا پھر تو تیل یا پھر لکڑی کو استعمال کرتے ہو، بلکہ وہ آگ وہ ہے جس کو جلانے کے لیے انسانوں کو اور پتھروں کو جو ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے. اس کے ذریعے سے اس کو دھکایا جاتا ہے، اس کو بھکایا جاتا ہے، اس کو سخت کیا جاتا ہے. علیہا ملائکۃ، پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کے اوپر ایسے فرشتے رکھے ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد اللہ. ان کی صفت بیان کی کہ وہ سخت مزاج ہیں، وہ نافرمان نہیں ہیں، وہ رشوت پکڑنے والے نہیں ہیں، وہ سخت مزاج ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانیاں نہیں کرتے ہیں کہ رشوت دے کر ان کو نرم بات بتا کر اور اپنے آپ کو انسان بچا لے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ان کو حکم دیا ہے وہ اس کو کر رہتے ہیں. یعنی کہ جس چیز کا، جس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس آگ کو کہ اس کو تو نے جلانا ہی جلانا ہے، اور ان فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پھینک دو اس کے اندر. جیسے قرآن نے کہا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، ان کو گھسیٹو، پکڑو، ان کو جہنم کے اندر جو ہے ڈال دو. تو فرمایا کہ وہ فرشتے وہ ہوں گے کہ جو پیچھے نہیں رہیں گے. اس لیے اللہ حکم دے رہا ہے قو انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے عیال کو بھی. اور کل قیامت کے دن تمہیں اس بارے میں جو ہے سوال و جواب ہوگا. پھر تمہیں جواب دینا ہوگا کہ ہم نے اپنے اولاد کی تربیت کیسے کی تھی. ہمارے یہ مکاتب جو پوری تحصیل چھاتروں کے اندر ہی نہیں، پوری ڈسٹرکٹ کے اندر ہی نہیں، پورے صوبہ جموں کشمیر کے اندر چل رہے ہیں، جو زیر نگرامی حضرت مولانا محمد امین صاحب جو ہے چلا رہے ہیں. اللہ ان کی عمروں کے اندر برکت نصیب فرمائے. یہ ہمارے جلسے، یہ پروگرام، ہماری یہ دینی تعلیم، جیسے کہ ہمارا یہ جلسہ تھا، اس کی سربراہی بھی ہمیں صدر کے ہاتھ میں تھی. اس کی سربراہی کے اندر ہمارا جلسہ یہ جو ہے بحسن خوبی پائے تکمیل تک پہنچنے جا رہا ہے. اسی طرح کوئی بھی دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، اس کے لیے ایک سربراہ ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے. جیسے گاڑی کے لیے ڈرائیور کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح دین کے کاموں میں بھی ایک امیر کا ہونا تو ضروری ہے. اس کے تحت کے اندر جو چلے گا تو اس کے اندر جو ہے انسان کامیابی کے قدم چومے گا. من مانی زندگی گزارے گا تو اس کے اندر کوئی فائدہ اور کوئی نیکی ملنے والی نہیں ہے. صرف کتاب پڑھنے سے انسان عالم نہیں بن سکتا.
सिर्फ किताब पढ़ने से इंसान डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता है। उसके लिए उस्ताद और एक अमीर का होना, उसकी बात को मान कर चलना, वो कामयाबी की कदम और वो नाम अमाल के अंदर लिखे जाएंगे। इसलिए हमें जो है इन चीज़ों की कदर करनी चाहिए। और अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है कि तुम अपने आप को भी बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। अगर आज हमने इस औलाद के ऊपर गौर व फिक्र नहीं किया, वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि जो दुनियावी तालीम इस वक्त हो रही है, और जब इन हमारे बच्चों और बच्चियों को हमारे इस कुरान से और हुकूकुल्लाह से, फिर हुकूकुल इबाद से जो दूर किया जा रहा है, फिर रिजल्ट और उसके नतीज भी ऐसे ही सामने आ रहे हैं। हम पढ़ते हैं किताबों के अंदर कि अरबी ममालिक के अंदर एक ऐसा वाक़या भी पेश आया है, और कल तक शायद कि हमारे इन इलाकों और हमारे इन डिस्ट्रिक्टों के अंदर भी ऐसा वाक़या पेश आ जाए। फरमाया कि अरबी ममालिक के अंदर एक वाक़या पेश आया। फरमाया कि वहाँ ये नर्सिंग होम जो रखे जाते हैं कि जहाँ वालिदैन बुजुर्ग हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, मोहताज हो जाएं, तो औलाद उनको उठाकर जो है उन होमों के अंदर, उन जो है बिल्डिंगों के अंदर डाल देते हैं और लोगों के हवाले कर देते हैं। फरमाया कि एक शख्स ने अपने वालिद को उसके अंदर डाल दिया लेकर, और जब वहाँ डाल दिया तो उनका कुछ अरसे के बाद इंतकाल हो गया। अब वहाँ के जो जिम्मेदार थे उन्होंने कॉल करके उसके औलाद से कहा कि आपके वालिद का इंतकाल हो चुका है। उसने जवाब के अंदर यूँ कहा, अफसोस तो है कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, लेकिन मेरे पास फुर्सत नहीं है। आप तजहीज़ व तकफीन कर लें और उसके बाद बिल मुझे पेश कर दें, हम आपको बिल अदा कर देंगे। और फिर ये वाक़या भी आया। इसी तरह दूसरे शख्स ने भी अपने वालिद को जो है उस नर्सिंग होम के अंदर डाल दिया। फिर उनकी कॉल आई कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया। पहले उसने कहा अफसोस है, अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ आकर इसको जो है पकड़ूँ और घर के अंदर लाकर तजहीज़ व तकफीर करूँ। लेकिन कुछ ही देर के बाद दोबारा कॉल आई उनके जिम्मेदार को, और उसने कहा कि हजरत मेरी मजबूरी है, मुझे एक अहम मीटिंग है और मैं मीटिंग के अंदर जा रहा हूँ, मैं अपने वालिद के पास नहीं आ सकता हूँ, आप कर लेना, देख लेना, कुछ कर देना जैसे आपको हो सके। अगर हमारी तालीम इस कुरान के साथ ना हुई, अगर इनको महबूब दो जहाँ रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हदीसों को इनके दिलो दिमाग के अंदर ना डाला, कुरान से वाबस्तगी ना की, इनको हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद ना समझाया गया, तो हो सकता है हमारा भी यही हाल हो कि कल तक हमारे बच्चे और बच्चियां भी हमारे साथ ऐसा ही मामला पेश करें। तो हमारे इन जलसों की, हमारे इन मकतबों की, हमारे इन मदारिस की गर्ज़ो गायत सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे बच्चों के अंदर दीनी शिआर आ जाए, हमारे बच्चों के अंदर हया आ जाए, हमारे बच्चों के अंदर अपने वालिदीन के हुकूक आ जाएं, हमारे बच्चों के अंदर अपने बच्चों के हुकूक आ जाएं, हमारे बच्चों के अंदर हमसाए के हुकूक आ जाएं, हमारे बच्चे के अंदर बड़े का अदब आ जाए, छोटों के ऊपर शफकत आ जाए। ये सारी चीज़ें हमारे इन बच्चों और बच्चियों के अंदर आ जाएं, ताकि कल जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये इंसान इस दुनिया से चला जाता है, दुनिया से चले जाने के बाद इस इंसान को सिर्फ 3 चीज़ों का फ़ायदा मिलता है और सारी चीज़ें तबाह और बर्बाद होकर रह जाती है। इस इंसान को सबसे पहला जो फ़ायदा मिलेगा वो है सदक़तुन जारियतुन। कोई ऐसा सदका, कोई मदरसा बना दिया, मस्जिद बना दिया, मकतब बना दिया, कोई कुआं बना दिया, कोई रास्ता बना दिया, या कोई भी ऐसा काम जिससे दूसरे लोग फ़ायदा उठा सके, वो इस इंसान को मरने के बाद जब तक वो काम होता रहेगा उसका फ़ायदा उसको ज़रूर भी ज़रूर मिलता रहेगा। और या इल्मुन यंतफ़िउ बिही, इंसान ने इल्म हासिल किया, दूसरे तक पहुंचाया, वो दूसरे तक पहुंचा रहे। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, जो वरासत हमें मिली है, जो चल रही है, अल्लाह क़यामत तक इसको जारी और सारी रखे, तो उसका फ़ायदा भी उसको मिलता रहेगा। या है फिर अवलदुन सालिहुन, या उसने अपने औलाद की, अपने बच्चे और बच्ची की ऐसी तरबियत की हो कि वो वालिदैन, वो माँ बाप या भाई बहन दुनिया से चला गया, अब उसको बार बार वो याद आ रहे हैं, और फिर उसको दूसरे को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अल्लाह ने उसको इल्म दिया है, उसको कुरान की तालीम दी है, उसको हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी है, वो उसको पढ़ेगा, नमाज दी है वो पढ़ेगा, और उसको वो याद आएंगे, वो तड़प तड़प कर और रो रो कर अपने वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने उन उस्तादों के लिए दुआ करेगा, तो अल्लाह उस दुआ के ज़रिए से ज़रूर भी ज़रूर उसको फ़ायदा पहुँचाएगा। लेकिन अगर हमने इनकी औलाद की तरबियत न की, दुनियावी तालीम के लिए हम कितने कोशिश कर रहे हैं, कितनी गौर व फिक्र कर रहे हैं, कितना माल और दौलत खर्च कर रहे हैं, वो खुद हम संभाल सकते हैं। जैसे कि एक इंसान, आज हमें जो है रोशनी की आदत हो चुकी है, रोशनी की आदत हो चुकी है, बिजली की आदत हो चुकी है। अब अगर चंद दिन रोशनी हमें मैसर नहीं होती, बिजली चली जाती है, तो हम परेशान हो जाया करते हैं। और जो इंसान इस रोशनी का आदत गुजार नहीं है, तो उसके लिए
जो है वो कुछ भी नहीं है। अगर लाइट 1 साल भी नहीं आएगी तो उसको परेशानी नहीं होती है। इसी तरह एक इंसान जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस दीन के खातिर अपने आप को लगाता है तो वो इंसान जब इस दीन से हटकर कोई काम करता है तो वो परेशान हो जाता है। जिस तरह एक लाइट का आदी इंसान परेशान हो जाता है, इसी तरह वो भी परेशान होता है। एक इंसान अपनी औलाद की फिक्र कर रहा है, उसकी औलाद गलत रास्ते पर जा रही है तो उसको भी परेशानी होती है। लेकिन एक ये औलाद फिक्र ही नहीं कर रहा है, वो असली तालीम के लिए तो कोशिश कर रहा है, मेरा बच्चा और बच्ची मुलाजिम हो जाए, इसके पास डिग्रियां आ जाए, इसके पास माल और दौलत आ जाए, दुनिया आए या ना आए। फिर मिसाल पेश करते हैं नूह अलैहिस्सलाम के, जब बेटा जो है वो भी तो काफिर ही मरा था, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपने बेटे को समझाया था। उसके बाद ना समझे वो दूर की बात है। हम कहते हैं समझाया था 2-3 मरतबा तो वो बाज नहीं आता है, लेकिन उसको बाज करना है। जब तक इंसान की जिंदगी के अंदर सांस है तब तक उसको जो है बाज करते रहना है। अगर उसको बाज ना किया फिर कल कयामत में उसके मुजरिम होंगे। हमें ये होना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन हजरत मौलाना याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक इंसान के दिल के अंदर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहबानियत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात बैठ जाते हैं, जब इंसान को वो शौक़ और जज्बा बैठ जाता है, फिर इंसान को दुनिया की हर चीज़ गंदी लगती है कि उसके मुकाबले में आखिरत एक पाक और साफ जगह है। ऐसे इनामात हैं जहाँ इंसान कभी परेशान नहीं हो सकता है। इंसान को वो लज्जत जब दिल को अंदर आती है तो दुनिया का हर गुनाह उसको नजर आता है। हजरत याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा, एक दोस्त ने मुझे दावत कर ली दारुल देवबंद के अंदर। फरमाया उनकी दावत के अंदर जब मैं पहुंचा तो उन्होंने जो खाना पेश किया, पहला ही लुकमा मैंने खाया था, मैंने लुकमा के अंदर उस खाने की लज्जत को जो है ऐसा महसूस किया कि ये लुकमा जो है हलाल लुकमा नहीं है। फिर मैंने उस खाना छोड़ दिया, फिर उसकी तहकीक की। फरमाया तहकीक करने के बाद मुझे यही रिजल्ट मिला कि ये जो लुकमा हराम का मैंने खाया, लुकमा जो मैंने खाया है ये हराम का है, हलाल कमाई का ये लुकमा नहीं है। फरमाया कि याकूब साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूजात के अंदर लिखते हैं 2 महीने तक मुसलसल उस हराम लुकमे की तासीर मेरे इस दिलो दिमाग के अंदर रही। 2 महीने तक मुझे जो है इबादत के अंदर जो है अपने ख्यालात गुनाह की तरफ जाने लगे। मैं रास्ते के अंदर जा रहा हूँ तो मेरे ख्यालात गुनाह की तरफ जा रहे हैं। तो जब इंसान घर के अंदर अपने औलाद को अच्छी तरबियत करेगा, हलाल रोज़ी खिलाएगा उनको जो है अपने, और फिर इंसान को ये भी करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बूढ़ी अम्मा आई और उसने अपने बेटे को बुलाया कि बेटे इधर आ जा, मैं तुझे कुछ देता हूँ। छोटे बच्चे को बुलाया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पूछा, आपने अपने बच्चे को बुलाया है लेकिन आपके पास इसको कुछ देने के लिए भी है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से उस औरत ने कहा कि हाँ मेरे पास एक खजूर है। कहा ठीक है, अगर खजूर है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप इसको झूठ और गीबत की तरफ दावत दे रही हैं और ये कह रही हैं कि गीबत और झूठ बोलना ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है। फिर वक्त आएगा यही औलाद आपको झूठ के ऊपर जो है, झूठ को झूठ समझ कर नहीं, इसको सवाब समझ कर आपको बोलेगी और फिर आपसे धोखा देगी। फिर आप जो है रोना रोएंगे कि हमारी औलाद नाफरमान होगी, ये झूठ बोल रही है, ये गलत रास्ते के ऊपर जा रही है। फिर उस वक्त आपका रोना किसी काम का नहीं होगा। इसलिए हमें ये गौर व फिक्र करनी है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कह रहे हैं कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि अपने आप को भी इस जो है जहन्नम के रास्ते से, उस आग से, वो आग क्या है? वो आग यही है, झूठ बोलना ये आग है, गिबत करना ये आग है, इस रास्ते से हटकर, दीन से हटकर दुनियावी चीज़ों को हासिल करना ये जो है आग, अपनी इज्जत की जो है आपकी हिफाजत न करना यही आग है। यही कल क़यामत के दिन फिर उस जहन्नम के अंदर हमें डाला जाएगा। और यही हमारे इस मकतब की और इनके जलसों की, इन प्रोग्रामों की गर्ज़ो गायत है कि हमारी औलाद भी बच जाए और हम भी बच जाएं। हमारा अहलो अयाल जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत के अंदर हमें समझा रहे हैं कि जहन्नम के आग से हम सब बचें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।